अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। हफ्ते को आए असम्बली इंतखाबात के नताइज में पार्टी ने अक्सरियत का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि रुझानों में दोपहर 12 बजे से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। 12 बजे कर्नाटका कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कारकुनों के सामने हाथ जोड़े। मीडिया के बीच पहुंचे तो जज्बाती हो गए। कहा, जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। 1 बजे के आसपास बीजेपी ने हार मान ली। वजीर आला बसवराज बोम्मई सामने आए और कहा कि नतायज का एनालिसिस किया जाएगा, पार्टी लोकसभा इंतखाबात में दमदार वापसी करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाम 5:19 पर कांग्रेस को जीत की बधाई दी। दोपहर 2:30 राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए। 6 बार मीडिया से नमस्ते कहा और 2 मिनट का वक्त मांगा। फिर बोले कि हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक ने दिखा दिया कि मुल्क को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो 5 अहम वादे थे वो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पूरे किए जाएंगे। शाम 7:15 बजे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब ये सच्चाई है कि बीजेपी शुमाली जनूबी हिंद यानी जनूबी हिंद फिलहाल बीजेपी मुक्त हो चुका है। रियासत की जनता ने फैसला किया और हमें 136 सीटें मिली। 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत हुई है। हट जाओ, आगे हट जाओ, चोट लग जाएगा, आंख में पड़ जाएगा, हट जाओ। ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೆಣಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ पार्टी टॉन्ट ಹೊಡೆದು कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए ಮತ್ತು कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು। ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಏನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ। ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆದು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ
ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಲಗಾರರಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಾಗಾರ ಮಾಡಿರೋದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ರಾಜ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿರೋರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 53,11,11,000 ಇತ್ತು ಸಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಲ 155 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 102 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It's a collective leadership. We are trying to work. I have said in the beginning, joining there is a beginning. They want to focus. Working together is a success. That is what I said on the day. I assured Sonia Gandhi having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored our peak. I thank all the leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers, the workers of the who took the responsibility. It is not one effort, including my ACC officer, my general secretary, charge general secretary, secretaries. They were like a block on the officers. All of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan and I'll meet you. I don't want to tell anything. There is only one support, Congress support. Leaders, always leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It's a collective leadership. We are trying to work. I have said in the beginning, joining there is a beginning. They want. कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर राहुल गांधी ने रियासती अवाम के साथ साथ सभी पार्टी कायदीन व कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इंतखाब में क्रोनी कैपिटलिज्म के पावर और गरीब अवाम की ताकत के दरमियान मुकाबला था। कांग्रेस के साथ गरीब अवाम की ताकत थी और उस ताकत ने पावर को हरा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यही अब हर रियासत में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी रखेगी।
कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी खुशी का इजहार किया और आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तारीखी मैंडेट देने के लिए कर्नाटक की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया। ये आपके इश्यूज की जीत है, ये कर्नाटक की तरक्की के नजरियात को तरजीह देने वाली जीत है, ये मुल्क को जोड़ने वाली सियासत की जीत है। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में भर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित है। और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत कांग्रेस ने हफ्ते को अपने लीडर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करके कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त बढ़तरी के दरमियान उन्हें नाकाबिले तस्कीर शख्स करार दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 50 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ मुख्तलिफ तबकों के लोग भी हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल हुए थे। वीडियो में सिया के गाने इंस्टा एबल के बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज बरामद होने के बाद कई गैर कांग्रेसी कायदीन ने कांग्रेस की आला क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रियासत में बेमिसाल कामयाबी के लिए कांग्रेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुबारकबाद पेश करने के साथ बीजेपी कारकुनों की भी तारीफ की जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर मेहनत की।
पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कर्नाटक इलेक्शन में हमारी हिमायत की है। मैं बीजेपी के कारकुनों की सख्त मेहनत की तारीफ करता हूं। हम आने वाले वक्त में मजीद जोश के साथ कर्नाटक की खिदमत करेंगे। कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को भारत जोड़ो यात्रा के मुस्बित नतायज के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी उनमें से 20 सीटों में से 15 सीट कर्नाटक में कांग्रेस की अक्सरियत वाज़ेह हो चुकी है और ताज़ा जो नतायज आए हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि 224 असेंबली सीटों में से कांग्रेस को 136 सीटें मिल गई हैं। जैसे ही नतायज में पार्टी की बढ़तरी की खबर आई, कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दौरान एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि मैं नाकाबिले तस्खीर हूं, मुझे यकीन है कि आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक में शिकस्त कबूल कर ली और वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कैमरे पर आकर साफ कहा कि वजीर आजम मोदी और बीजेपी कारकुनों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम जीत नहीं सके। तमाम नतायज सामने आने के बाद इसका तफसीली तजिया करेंगे। हम नतायज को खुश असलोबी से कबूल करेंगे और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो जाएंगे। बोम्मई के इस बयान में कुछ अहम हक़ाइक़ भी शामिल हैं। एक तरह से कर्नाटक इंतखाबात में मुहिम की कशिश वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रैलियां थी। बीजेपी के अपने आदाद शुमार के मुताबिक पार्टी ने कर्नाटक में जुमला 9125 रैलियां और 1377 रोड शो मुनक़िद किए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने 42 रैलियां की, जबकि अमित शाह भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 30 रैलियों में हिस्सा लिया। जिन 42 हलकों में वज़ीर आज़म मोदी ने रैलियां की उनमें से बीजेपी कम से कम 22 सीटों पर पीछे थी और दोपहर 1 बजे तक वो सिर्फ 20 सीटों पर आगे थी। इस तरह वज़ीर आज़म मोदी की कारकर्दगी 47% रही। वज़ीर आज़म के करीबी माने जाने वाले अमित शाह का रिकॉर्ड और भी खराब रहा। उन्होंने जिन इलाकों में रैलियां की वहां बीजेपी की बढ़तरी का फीसद सिर्फ 37% रहा। अमित शाह की 30 रैलियों में से बीजेपी 19 सीटों पर पीछे थी और दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 11 सीटों पर आगे थी। कि जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं और ये जो डिबेकल है वो पार्टी मैं खुद उसका जिम्मेदारी लेता हूँ और आगे दिनों में इसका मल्टीपर्पज कारण है, सब कारण ढूंढ के सही करके हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर से संगठित करके पार्लियामेंट इलेक्शन में कहाँ गलती हुआ है हम एनालिसिस करेंगे। मल्टी फैक्टर है, एक ही नहीं है। अमित शाह जी मोदी जी भी आके थोड़ा वो तो भरपूर कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत थी तैयारी का। तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने कर्नाटक के रिजल्ट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि तब्दीली के हक में नतीजा खैज मैंडेट के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। जालिम तानाशाही और अक्सरियत पसंदी की सियासत की ये शिकस्त है। जब लोग अक्सरियत और जमहूरी ताकतों को जिताना चाहते हैं तो हावी होने के लिए कोई भी सेंट्रल डिजाइन उनकी चाहत को दबा नहीं सकता। ये कहानी की अखलाकियात है, कल के लिए सबक है। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारा असल मकसद कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त देना था। मैं गुज़िश्ता 8-10 दिनों से अवामी जलसों में कह रहा हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त होगी। भले ही बीजेपी के सीनियर कायदीन ने कई जगहों पर मीटिंग और रोड शो किए, लेकिन हमें यकीन था कि वोटों के जरिए लोग अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute the winners also for their victory. Even Kumaraswamy ji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the states BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024, because if you see full India, from where they will get the vote, UP of course, Yogi Raj is
So there people are afraid, and BJP, of course, they have some field there, and opposition is not that strong. But this time, Akhilesh will do better, and I will be with Akhilesh also, others also. So UP is with them, and Gujarat is with them. Haryana only 3-4 seats. And from where you will collect the seat? You tell me. If you see south, start from south. Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Chennai, look east, Bihar, Bengal, Jharkhand, Odisha also, I think this time they may think over. Then you go to Delhi, Mumbai. Then you go to Punjab. So many. So they don't get the seat. Earlier it was peak hours, peak time. They have got. कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस रुकन असेंबली कनीस फातिमा एक बार फिर कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। कनीस फातिमा ने सख्त मुकाबले में बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ तकरीबन 3000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वहां से कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस मुकाबले में थे। कनीस फातिमा मरहूम कमरुल इस्लाम साबिक वजीर की अहलिया हैं। कमरुल इस्लाम की वफात के बाद वो सरगर्म सियासत में आ गई। 2018 के असेंबली इंतखाबात में कनीस फातिमा ने गुलबर्गा से 5940 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस 2008 से इस हल्के से जीत रही है। जब हिजाब के मामले ने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी तो कनीस फातिमा ने असेंबली की इमारत के अंदर हिजाब पहनने का चैलेंज देकर तवज्जो हासिल की थी। कर्नाटक के वजीर तालीम बीसी नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, इलेक्शन हार गए। कर्नाटक के वजीर तालीम और बीजेपी लीडर बीसी नागेश, जिन्होंने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को नाफिज किया था और रियासत में मुसलमानों के माशी बाइकआउट पर जोर दिया था, वो अपने हल्के से ही इलेक्शन नहीं जीत सके। पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने हफ्ते को जालंधर लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू की जीत को उनकी हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता 14 महीनों में किए गए कामों पर आवाम की मुहर करार दिया। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से खिताब किया, जिसमें वजीर आला मान ने कहा कि उनकी पार्टी मजहब, जात पात की सियासत नहीं करती और उसके मसाइल तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस जीत से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पंजाब में तो देखो, पंजाब में जालंधर में जाना दुआबा की सीट है जो 50 साल से कांग्रेस के पास थी और कोई प्रचार करने भी नहीं जाता था, वोट मांगने भी नहीं जाते थे कांग्रेस वाले। इस बार भी नहीं आए, इस बार भी कोई नेता बड़ा जलंधर में वोट मांगने नहीं आया। उनको लगता था जी तो हमारी सीटें पक्की है, लोगों को वोट देनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बदल गया है। इस सीट के जीतने के बाद लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। विधानसभा में हम ऑलरेडी हैं और इतना अच्छा काम करेंगे 2024 में 13 में से 13 सीटें जीते हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े। पंजाब में तो देखो, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि गवर्नेंस में सिविल सर्विसेज रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और उसके जरिए मुल्क में हुकूमती पॉलिसियों के निफाज में बुनियादी किरदार अदा किया जाता है। धनखड़ हफ्ते के रोज अपनी रिहाइशगाह में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 1984 बैच के अफसरान की मुश्तरका तसनीफ रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज की रिलीज के मौके पर सीनियर अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब कर रहे थे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि शफाफियत, जवाबदेही, डिजिटाइजेशन, इख्तिरात और कारोबारी रुख पर मरकूज हिंदुस्तानी हुकूमत का मॉडल दुनिया भर के लिए काबिल रश्क है। It is satisfying to associate with the release of the book Reflections on India's Public Policies. The book lived up to its title. Insightful and analytical discourse by 10 esteemed distinguished IAS officers of 1984 batch, seasoned policy makers,
and executors bears out their contributions as also concern in the largest democratic governance. It is certain इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी ओहदेदारों पर पाबंदी लगा दी है। आईओए के जॉइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे ने रेसलिंग फेडरेशन को अहकाम जारी कर उसके सभी ओहदेदारों के माशी और सभी इंतजामी कामों पर रोक लगा दी। आईओए ने कुश्ती संघ यानी रेसलिंग फेडरेशन से सभी दस्तावेज, अकाउंट्स और बैरूनी टूर्नामेंट्स के लिए भेजी जाने वाली एंट्री का लॉगिन, वेबसाइट मेंटेनेंस उसे सौंपने को कहा। एसोसिएशन ने यह कदम वजारत स्पोर्ट्स की जानिब से रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात रद्द कर आईओए की एक टेम्पररी कमेटी को फेडरेशन के इंतखाबात कराने और उसे चलाने का जिम्मा सौंपने के बाद किया। बता दें कि मुल्क के कई नामी पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदरनशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से धरना दे रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात 45 दिन में कराने के अहकाम वजारत स्पोर्ट्स ने एसोसिएशन को दिए हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान 14 साल बाद हफ्ते के रोज कोलकाता पहुंचे। वहां उन्होंने वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से काली घाट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला ने शाल उड़ाकर एक्टर का इस्तकबाल किया, फिर दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया। इसके बाद दोनों ने घर के बाहर मौजूद लोगों का उनका खैर मकदम किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सीएम से मिलने के लिए वक्त मांगा था। सलमान आज ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रीलोडेड नाम के प्रोग्राम में शामिल हुए। इसराइल और फलस्तीनी जंगजुओं के माबीन जंगबंदी की उम्मीदें मादूम होने के साथ दोनों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। लड़ाई में अब तक दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन एक के सिवा सबके सब फलस्तीनी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कशीदगी कम करने के बैनुल-अक़वामी मुतालबात के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इसराइल ने ऐलान किया कि वो गुंजान आबाद फलस्तीनी इलाकों में इस्लामी जिहाद के अहदाफ पर हमला कर रहा है, जबकि एक सहाफ़ी ने गाज़ा शहर पर फ़िज़ाई हमले होते हुए देखे। इस दौरान गाज़ा की पट्टी के साथ सरहद के करीब इजरायली बस्तियों में आने वाली आग की वार्निंग के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे में यरूशलेम के करीब भी इसराइली बस्ती में सायरन बजने लगे। तशद्दुद का यह मरहला मंगल को शुरू हुआ था, जब इसराइल ने इस्लामी जिहाद ग्रुप के 3 सरकर्दा अरकान को कत्ल कर दिया था, जबकि बाद में होने वाले हमलों में भी कम से कम 3 दीगर आला शख्सियात शहीद हुई। यह हमले जुमेरात की रात वसती इसराइल के शहर रुहफूत में एक रॉकेट के हमले में एक शहरी की हलाकत के बाद किए गए थे। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल से निकलने के 18 घंटे बाद उन्होंने मुल्क से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक धागे में लटकी हुई है, इसे सिर्फ अदलिया ही बचा सकती है। इमरान ने आगे कहा कि जेल जाने से बचाने के लिए वो जुडिशरी के अदलिया के शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा मुजरिम जुराइम पेशा आदमी आज मुल्क के ऊपर बैठ गया, तो जब आपकी मुल्क की अखलाकियात खत्म होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा अल कादर यूनिवर्सिटी का मकसद बनाने का था क्या कि इस मुल्क के अंदर साइक्लोन मोका जुमे की रात सेंट्रल और उससे जुड़े बे ऑफ बंगाल के ऊपर शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील हो गया। इसका असर दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर भी पड़ सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साइक्लोन के चलते अगर सैलाब या लैंडस्लाइड होती है तो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर वाक़ रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप तबाह हो सकता है। इस रिफ्यूजी कैंप में करीब 8,80,000 रोहिंग्याई रहते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि ये तूफान बीते 6 घंटों में 15 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से बड़ा है। 14 मई की दोपहर तूफान के बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के कप्यू को पार करने का अंदेशा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।